سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نکاح کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی خطبہ ارشاد فرما کے دنیا کو پیغام دیا کہ تمام طریقے اللہ کے لیے، درود اس کے محبوب کے لیے. پہلی قومیں جو تھی وہ نکاح کے موقع پہ اپنی برادریوں کی تعریف کرتی تھی، اور پھر وہ اتنی تعریف کرتی تھی کہ حسب نسب کا مسئلہ آ جاتا تھا. دونوں فریقین اپنے اپنے حسب نسب کو اونچا کرنے کی کوشش کرتے تھے، لڑائیوں میں بدل جاتے تھے، خوشیاں لے گھر بربادی اتر جاتے. تو اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا، اما بعد فإن أحسن الخير الحديث کتاب اللہ. یہ ساری کائنات میں اللہ نے اپنے محبوب کو اچھا دین دیا، اچھا طریقہ دیا. 7 طریقوں سے افضل طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو نکاح کے موقع پہ نبی کریم نے لوگوں کو سمجھایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے دلہا اور دلہن کہ اللہ سے ڈرتے رہنا ہمیشہ. کوئی بھی معاملہ ہو تو ایسے ڈرنا جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق حاصل، یعنی بیوی پہ ظلم نہیں کرنا، بیوی نے خاوند پہ ظلم نہیں کرنا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. فرمایا اے ایمان والو، اللہ سے ڈرنا ہے، سچی اور سیدھی بات کرنی. نکاح کے موقع پہ یہ باتیں ضروری کرنی چاہیے کہ یہ جو آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے دولہا اور دلہن کو پابند کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہیں کہ جب بھی بات کرنی ہے دلہن سے دولہے نے سچی اور سیدھی کرنی ہے. یعنی فون پہ آپ نے جہاں ہونا وہاں ہی بتانا ہے، یہ نہیں کہنا میں لاہور بیٹھا ہوں بیٹھا بات ہاں میرا چاند. تو یہ قرآن کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ سچی اور سیدھی بات کرنی. مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے. لباس سے کوئی چیز چھپائی نہیں جاتی. اب میں نے یہ لباس پہنا ہوا ہے، اس نے میرا جسم ڈھانپا ہے. اسی طرح دولہا دلہن کا لباس ہے اور دلہن دولہے کا لباس ہے. دلہن جو ہے اپنے دلہے سے کچھ نہیں چھپا سکتی اور دولہا اپنی دلہن سے کچھ نہیں چھپا سکتی. اسی طرح شریعت نے کہا ہے کہ بات بھی کرنی ہے تو سچی اور ایمانداری سے کرنی ہے، یعنی تنہا بھی بیوی نو پوری دسنی. یہ بھی مسئلہ ہے. تایا تمہیں پوری دسی سی نا، میرا تایا بیٹھا ہے پرانے وقت سے نکاح کیا ہے. یہ نکاح کے موقع پہ میں ان کے دادا ہے، نانا ہے، ماشاءاللہ خوش قسمت نانا ہے کہ اپنے نواسے دے نکاح شامل ہے. تو یعنی نکاح کا مطلب مولویوں نے نا اصل میں خالی کلمے پڑھائے کہ چلو جی بھائی نکاح کا مقصد ہے کہ دولہا اور دلہن کو ایک عقد میں باندھنا، گرا لگانا اور اس کو سمجھانا. جدو گنڈ بجتی ہے بندہ دستا نہیں یار گنڈ دھیان نال جائیں، کھول نہ جائے، رستے میں چیز ڈول نہ جائے، نقصان نہ ہو جائے، یار کھانا خراب نہ ہوئے، بیڑا گرک نہ ہوئے، دھیان نہ جائیں کہتے نا بندے. یہ دولہا دلہن کی ایک غذا لگائی جاتی ہے. اب ان کو پابند کیسے کرنا ہے؟ مولوی تو کرتے نہیں. مولوی تو آتے ہیں بس کلمے پڑھائے، سین کرائے، فیس لے کے چل میرے بھائی. یہ میں آپ کو اس لیے یہ باتیں کھلی بتاتا ہوں کہ اللہ کرے ہمارے علماء کرام نکاح کے موقع پہ یہ باتیں کریں تاکہ دولہے کو سمجھ ہو کہ جی میں نے حلف دیا ہے، جو میرا خطبہ نکاح ہوا ہے اس میں مولوی صاحب نے مجھے کن چیزوں کا پابند کیا ہے. کہ اسی طرح دولہن کو بھی حکم ہے کہ دولہے کے ساتھ سچی اور سیدھی بات کرنی. شریعت نے کہا ولا تجسسوا، کسی کی جاسوسی نہیں کرنی. لڑکی کے ماں باپ کو چاہیے کہ ساری زندگی اپنی بیٹی سے فون پہ نہیں پوچھنا کہ آپ کے ساتھ یہ کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں. کیوں؟ اب وہ آپ کی بیٹی نہیں رہی، بیٹی وہ آپ کے گھر میں تھی. اب وہ ایک دولہے کی ملکیت ہو چکی ہے. آپ نے نا جی اس کو نکاح میں دے دیا ہے. اب دولہا اس کا خامد ہے. اب اس کے گھر کی 4 دیواری الگ ہے. ہر 4 دیواری کی ایک پرائیویسی ہوتی ہے. ہر 4 دیواری کے اندر جو بات ہو وہ امانت ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے شریعت نے کہا ہے کہ دولہا اپنے سسرال کی بات اپنے میکے نہیں بتائے گا اور دلہن اپنے سسرال کی بات اپنے میکے نہیں بتائے. کیوں؟ اس نے ایک نیا گھر تعمیر کر لیا ہے. دلہن کا اپنا ایک گھر اپنے گھر کی بات کوئی بھی باہر نہیں بتاتا. یہی بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی. لڑکیاں فون پہ ٹیوشن لیتی ہیں،
वो फिर घर बिगड़ जाते हैं। ट्यूशन लेने वाला इंसान कभी भी लायक नहीं होता, लायक वो होता है जो खुद पढ़े, उसको समझ आए। आप पीछे से माँ बाप के लिए ये नसीहत है, कभी भी बेटी से नहीं पूछना तुमने खाया क्या है, बस अल्लाह ने जो उसकी किस्मत में लिखा है वो खाएगी, उसको मिलेगा। इसी तरह दूल्हे ने भी कभी अपने ससुराल से कुछ खा के ये नहीं बताना कि मुझे उन्होंने कुछ खिलाया ही नहीं, अब आप उनकी इज्जत बन चुके, उन्होंने बेटी दे के आपको बेटा बनाया है। तो घर की गल बंदा मिसाल किस टाइम गोभी खाता है, आलू खाता है, मगर सहुरियां च भी एक बहुत बड़ी कमी आ गई। तगड़े जवाई नूं छोटा गोश्त खवाउंदे ने, टिक्का बोटी, मलाई बोटी, ते माड़े जवाई ली गोभी। मैं सच्ची गल कर रहा, माड़े जवाई नूं साले भी प्यार नाल नहीं बुलाते, माड़े जवाई नूं ससुराल वाले पूछ के नहीं चलते। मगर मैं खुदा के लिए हाथ जोड़ता हूं निकाह के मौके पे कि जिसको बेटी देते उसकी दौलत की इज्जत नहीं करते, जिसको बेटी दी उसकी शख्सियत की इज्जत करते हैं। गरीब अमीर होना अल्लाह की देन है, ये किसी के बस की बात नहीं है। निकाह के मौके पे मैं इस तरह की बातें इसलिए समझा रहा हूँ कि तुम कभी भी अपने दामाद की इज्जत, उसकी पर्सनैलिटी, उसके कपड़े, उसका खाना पीना देख के ना करें। सिर्फ आपने बेटी दी है और इस वजह से उसकी इज्जत करें। और साढ़े वड्डे दसते ने कि लोकी जवाई दी मरण दम तक की कबर दी भी इज्जत करते सी। जवाइयां दी लोकी पिंड दा बंदा टांगे ते बह जाना तो कोचवान ने पूछना पुत्र तू किधर चलना है, तो उन्हें आखना जी मैं फलाने दा जवाई है तो मैं फलाने घर चला। तो उन्हें उतरन लगने पैसे देने, तो कोचवान ने कहना मैं पैसे लेने, तू उन्हों का जवाई नहीं, तू साडा जवाई, पिंड का जवाई है। पिंड के जवाई नूं लोकी अपना जवाई समझते ते इज्जत होंदी सी। हुण तुसीं रक्शे 'च बह जाओ ते ओह पुछ भी लवे ना भी तू किधर जाना है, जी मैं फलान दा जवाई है तो मेरे को 5 रुपये घट है, उन्हें कहना इत्थे उतर उन्हें नहीं तोड़ ले जाना। ये इतनी दुनिया में बेहयाई हो गई है, किसी का हया ही नहीं रहा, ना छोटे दा या ना वड्डे दा या। अगे जिथे सहुरा बहंदा सी ना, जवाई कदी अपने सहुरे दी मंजी दे बराबर नहीं बहंदा। जिथे सस बैठी हुंदी सहुरे दे कोल, सस दे कोल मुंडा नहीं सी बहंदा। हुण मुंडे कुड़ियां सस सहुरे दे नाल बह के फिल्मां वेंदे, टीवी वेंदे, घर वाला घर नहीं, मैनूं किहदा डर नहीं। जिथे सारियां गल्लां जिथे होवे एक कमला उन्होंने समझावे वेड़ा, जिथे होवे वेड़ा कमला उन्होंने समझावे केड़ा। इत्थे मां भी अन्नी, धी भी अन्नी, पुत भी अन्ना है जवाई, ते रब ने सानू भाग लाया को नौ भी अन्नी आई है, टब्बर ही अन्निया। सानू समझाउण दा मकसद है जिथे सस सहुरा बैठा बेटा उनके बराबर नहीं बैठना, और जहाँ दामाद बैठा है वहाँ अपनी दूसरी बेटियों को नहीं बिठाना। इत्थे सालियाँ अपने भनोइये ना हंस हंस गल्लां कर, ये शरीयत है। शरीयत को जब हम बाईपास करेंगे हमारी ज़िंदगी में सुकून नहीं आएगा, हमारे घरों के बिगाड़ इसीलिए पैदा हुए। आज देखें इस बेटी के बाप ने कितनी मेहनत से ये अपनी बेटी की शादी का निकाह रखा है, और अल्लाह उसको सुख दे। मैं आपको मांग करता हूँ कि कभी अपनी बीवी की बात दूसरे आदमी को नहीं बतानी। हाँ, आपके घर में कोई मसला बने तो अपनी बीवी के साथ खड़ा होना कि वो किसी की बेटी है, मेरे लिए सब कुछ छोड़ के आई। मगर कई दूल्हे एडे पहुंचे अंतरे होंगे, वो सहुरियां दे दिते बैठते बह के सहुरे नूं गालां कढी आउंदे। मैं वेखिया उन्हां दे सोफे ते बह के असलां नाल जे नेकी करिए ते नस्लां तक नहीं भुलदे, ते बेनस्लां नाल नेकी करिए ते पुठियां चालां चलदे। जिन्हें बेटी दी है सारी उम्र मेहनत करके समान बना के दिता है, और चलियो इत्थे तुहानूं कोई लिफ्ट दवे ना गड्डी च बहा के आके मैं तेनों साहीवाल ला दूँ, तो तू सारी जिंदगी उहदा हिया करना है कि मैंने लिफ्ट दी सी। जिन्हें धी पाल के दी, समान बना के भुखा कट के मकान बनाया, भुखा कट के बेटी का फर्नीचर बनाया, भुखा कट के जेवर बनाया। सारी जिंदगी ससुराल अगे अख नहीं चुकनी चाहिए बंदे नूं कि उन्होंने इन्ना कुछ किया। और अल्लाह की कसम उठाता हूँ, ये माँ बाप के लिए एक बहुत खुशी का लम्हा होता है जिस दिन बेटी को डोले में डालते हैं। धीयां को आम ने धीयां होंदियां ने दौलतां बगानियां, साडा केड़ा जोर बाबला
जदों चढ़न धीआं नूं जवानियां मापे देंदे तोर बाबला नीवी पा के उत्थे तुर जांदियां जिथे देंदे तोर बाबला उच्चा कदी भी नहीं बाबल के बोलियां बगाने हाथ डोर बाबला। ये बेटियां ही जानती, अल्लाह की कसम है इन बेटियों को अल्लाह ने इस वजह से जन्नत दे देनी है कि 20 साल माँ बाप के घर में रह के किसी और घर को अपना घर बना लेते, माँ बाप का घर छोड़ के दूसरे घर में दिल लगा लेते। मगर मैं दूल्हे के वालिद साहब को नसीहत करूँगा कि नया पौधा बंदा लाए ना नर्सरी चो पुट के तो 15 दिन कमला जाता है, 10 दिन वो पत्ते कमला जाते, वो रंगत बदल जाती है, माली उन्हें पानी देता है, मिट्टी बदलता है, पौधा चल जे। जिस औरत ने 20 साल माँ बाप के घर गुजारे वो आपके घर में किसी दिन टेंशन में भी रहे, 8-10 दिन का दिल भी नहीं लगेगा। मगर ये नहीं कहना कि पता नहीं ये लड़की राजी नहीं, पता नहीं इसका दिल नहीं किधर लगा है, ये सारी गलत बातें हैं, ये घर उजाड़ने वाली बातें हैं। कुरान कहता है कि तुम किसी के बारे बदगुमानी ना फैलाओ, उसके अंदर के मामले तो अल्लाह जानता है। तो यहाँ आपको समझाता हूँ उसका दिल लगाना है। अगर वो कहे मुझे मेरे माँ बाप को मिलाने ले जाओ तो फौरन कहना है बेटा जाओ मिला लाओ। क्यों? सिर्फ 1 साल होता है, उस तो बाद अल्लाह धी पुत्र दे देता है, वो फिर अपनी जिंदगी च बिजी हो जाता है। जो 3 साल का बच्चा होवे स्कूले दाखिल करा देंगे ने, इन्हों का बस नहीं चलता 2 साल में दाखिल करा देना, इन्ने तंग होंगे ने बस। मगर ये 3 साल का बच्चा स्कूले छड्ड आउंदे, मुड़ के धीआं आंदियां नहीं जी मैं आनी आना मेरे बच्चे स्कूल जाते। ये निकाह के मौके पे बातें करने का मकसद था कि दूल्हे को समझा दूँ, उसके वालिद को समझा दूँ, दुल्हन की वालिद को समझा दूँ, बरातियों को समझाऊँ, ताकि तुम्हें ज़िंदगी में ये बातें काम आएँ। अल्लाह से दुआ है अल्लाह इस निकाह की बाबरकत महफिल पे जो मैंने बातें की हैं वो अल्लाह कबूल करे। बेटा असद मेरा चंद, शमाइला फरूक, डॉक्टर मोहम्मद फरूक, ये कहाँ वारसा लड़की तमाम गवाहों की मौजूदगी में तमाम गवाहों की मौजूदगी में आप तमाम गवाहों की मौजूदगी में शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप सच्चे मुसलमान हैं और आपका ईमान है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, वो हमारा अकेला ही खुदा है और उसका नबी माँ काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन कि मेरे नबी को अल्लाह ने आखिरी नबी बना के भेजा, आखिरी रसूल बना। ये फार्म भी इसमें लिखा है कि आपने हलफ दिया है कि आप आखिरी नबी आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा को मानते हैं और हमारा सारे मुसलमानों का ये ईमान होना चाहिए और यही हमारा ईमान है कि हज़ूर आखिरी नबी है। ये हलफनामा जो आपने पढ़ा हुआ है आपने भी सारों के सामने इकरार कर लिया है, मैंने भी आपका इकरार करा लिया है कि दुल्हन भी जो है वो आखिरी नबी आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानती है। आप भी तमाम गवाहों की मौजूदगी में वली की इजाज़त के साथ नाती शमाइला फ़रूक डॉक्टर मोहम्मद फ़रूक के साथ ये भाई फ़रूक साहब की साहबजादी के साथ 20,000 मुअज्जल हक महर वाहिवस मौके पे जो अदा किया गया, आपके वालिद साहब ने लड़की के हवाले किया मेरी मौजूदगी में। बेटा आपके निकाह में मैं नासिर मदनी आपके निकाह में इस बेटी को पेश करता हूँ। आपको ये मैं अपनी ये रूहानी बेटी शमाइला फ़रूक डॉक्टर मोहम्मद फ़रूक उसके वालिद की इजाज़त के साथ तमाम गवाहों की मौजूदगी में शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक 20,000 मुअज्जल हक महर जो मौके पर अदा किया, मैं नासिर मदनी उस बेटी को आपके निकाह में पेश करता हूँ। तमाम गवाहों की मौजूदगी में शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक 20,000 मुअज्जल हक महर जो मौके पर अदा किया गया, शमाइला फ़रूक डॉक्टर मोहम्मद फ़रूक जो कि भाई फ़रूक की साथ गाली है। तमाम गवाहों की मौजूदगी में 20,000 मैं नासिर मदनी में आपके नहीं होते
ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਿਨ ਕਰੀ ਜਾ ਗਿਆ ऐसा करना तो है ना ਉਹ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ है चंगा कितना दुआ पहले लिख लो